Thank you, Abuji. Our beloved Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, and my colleagues, Deputy Chief Minister Y. Patton, and our respected Reverend Wohoto Sema, Executive Secretary of Sume Churches, leaders of the BJP and NDPP, and my respected candidates of NDPP and BJP Alliance, Dimapur 1, Tovihoto, Dimapur 2, Moatoshi, Dimapur 3, Hekani, and Gaspani 1, Jacob Zemomi, and Gaspani 2, Zalio Rio. Distinguished friends and from press and media, party men and women. On behalf of the state of Nagaland and the people and the whole Northeast. You have given a special attention to Nagaland on political issue and development, for which we are always grateful to you. From the Look East to the Act East policy, you have changed the mainstream political narrative India has about the Northeast. We remember what you famously echoed: India will not be developed if the Northeast is not developed. On behalf of the people of Nagaland and the Northeast, I want to thank you for your constant guidance and support, and for your investing your faith in my leadership and my government. Indeed, our country is privileged to have a visionary leader like you. Under your leadership, India has risen, and India is today the world's fastest growing economy. And by this year, we learned from the RBI bulletin that India economy will be 3.17 trillion, is ranked as 6th largest economy in the world. And now with the Prime Minister flagship programs of Make in India, India is capable of becoming a manufacturing hub and steer the global economy. So your holistic government schemes, the PM's vision of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, Sabka Prayas, to build an Atmanirbhar Bharat, has been moving in the right direction. The delivery system have improved, and the citizens are now sensitized about various government schemes and initiatives. From the number of households to free gas
and water connection in every home, and from the affordable access of financial services to direct benefit transfer to our farmers. The poor and marginalized sections have now been converted under a holistic scheme. There is a free medical insurance coverage through Ayushman Bharat Yojana. Farmers and laborers get a monthly pension. With the implementation to Right to Education Act in 2009, and the country succeeded in providing quality education irrespective of gender, caste, creed, and family income. Under the National Food Security Act 2013, also known as Right to Food, the Act, the government has been reaching out to the below poverty line populace. Sir, there has been several paths breakings, which I'm sure we are all aware. All this the Honorable Prime Minister has done to make India self-sufficient and self-reliant. On the technology sector, you have all witnessed the progress in the technology form. Digital India, Startup, and Stand Up India. Production links incentive ensure that the people's inherent innovativeness thrives and continue to attract foreign investment. And the digitalization of the Indian economy has elevated digital transactions in the country to 40%, the highest in the world, for the first time in independent India. The poor and the weaker sections have become direct stakeholders in the government. So on foreign policy has excelled and robust diplomatic doctrines have been developed under your leadership. And on the international trade and energy, the relentless focus on international trade and investment has tremendously improved ease of doing business in the country, and now the Global Solar Alliance has been established. In your diplomat aids to the neighboring and needy countries had acclaimed and make India proud, even during the COVID-19 or the earthquake relief in Turkey and Syria. Global issues have been tackled and handled successfully of terrorism and global warming, inviting praise from global community. As India has G20, the world is looking at this great nation with a different perspective. Since Nagaland has been approved to hold a G20 meet, I am grateful to the Prime Minister for Nagaland and its people will also be a part of India's international history. Honorable Prime Minister, sir, I am sure you are aware that in 2003, our former Prime Minister, Shri Atal Bihari Vajpayee ji, visited to Kohima, garnered worthy praise from the Naga people. As such alliance between BJP and regional party in the Northeast was the first achieved in Nagaland under my leadership, it is now 20 years that this alliance has been successfully presiding under your leadership and guidance. So you have, at that time, Vajpayee ji had announced 4-lanes highway and also youth empowerment schemes and infrastructure development worth more than 200 crores. Most significantly, he acknowledged the unique history and culture of the Nagas
appreciated the Naga tradition of participating in the purest form of democracy and assured us that India respects all faiths. Because of these diplomatic moves by Shri Vajpayee ji, today we have a cemented friendship with the NDA and the BJP party. On Naga political issue, Vajpayee ji recognized our uniqueness, but it is your leadership. You have witnessed a great understanding between the Nagas and the rest of country, India. And this brings us closer to a successful political dialogue. We have now seen the signing of framework agreement with IM and the agreed position with NMPG and remove of Armed Forces Special Power Act from selected areas. At the top of our agenda is the resolution of decades-old Naga political issue, and we are hopeful that in the near future, the political dialogue between Government of India and the Nagas political groups will reach a meaningful convergence, and we are all expecting the end result to be honorable, inclusive, and acceptable. Both the Government of India and the Naga political groups have our assurances for all the support and cooperation. On the youth of Nagaland, Honorable Prime Minister Modi ji, you can see that the youth of Nagaland are vibrant, capable, and innovative. I'm sure if given opportunity, they will make greater contribution towards India's growth, and will look for leadership in realizing these collective aspirations. Nagaland is center assistant consistently, as unlike other states, are unable to sustain our own. As such, it is our humble request to consider positive various development projects to be implemented in the state, which are already submitted in your office. We are also coming with development agendas, progressive policies backed by your Prime Minister, sir. Therefore, I am earnestly appealing to all electors of Nagaland, BJP and NDPP on 27 February. Only with the help of God and your support, we can get a mandate to form 2023 Nagaland government with a resounding victory. In conclusion, I once again thanks our beloved Prime Minister Shri Narendra Modi for gracing us on this important occasion in the campaign rally, and Naga people will join in wishing you good health, long life. May India as a whole continue to rise and shine under your stewardship, your visionary leadership. Thank you and Jai Hind. Thank you, Honorable Chief Minister, sir. Ladies and gentlemen, we know that India is rising under our Prime Minister. Every citizen of the country today is proud to be an Indian amongst the Committee of International Nations, thanks to the visionary leadership of our Prime Minister. Prime Minister, sir, as the Chief Minister had stated, our relationship with the BJP and the NDA goes back decades. It was in 2003, sir, you will know, that Prime Minister Vajpayee ji spent 3 days in Kohima, connected with the Naga people and won the hearts and love of the Nagas. He announced to the world that India recognizes the unique history and heritage of the Naga people. Sir, in continuing with that, you have signed under your leadership the framework agreement, the agreed position, the removal of Armed Forces Special Powers Act in selected areas, and your development agenda has impacted the lives of people across Nagaland. Today, we are proud to have you here. We are privileged to have you here. And sir, you carry the prayers, the support and the solidarity of the Naga people. Ladies and gentlemen, let us all rise and give a huge welcome to our Prime Minister as he takes his time.
नमस्कार। आपने खान किन्हीं कहां से? दिमापुर में दूर सुदूर से पहुंचे सभी साथियों को मेरा नमस्कार। नागालैंड की सांस्कृतिक विविधता से मैं हमेशा प्रभावित रहा हूं। आपका ये प्यार देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बीजेपी एनडीपीपी के पक्ष में बहुत बड़ा जन समर्थन देख रहा हूं। नागालैंड में विकास और विश्वास की लहर चल रही है। भाई और बहनों, नागालैंड में बीजेपी एनडीपीपी सरकार के लिए इतना समर्थन आज इसलिए है क्योंकि हम नॉर्थ ईस्ट के तेज विकास का संकल्प लेकर दिन रात काम कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट के लिए, नागालैंड के लिए कांग्रेस उसके पार्टनर्स की पॉलिसी रही है, वोट पाओ और भूल जाओ। कांग्रेस के दिल्ली के नेता नागालैंड की तरफ देखते तक नहीं है। कांग्रेस और इसके सहयोगियों की सरकारों ने अपनी पॉलिटिक्स में नागालैंड की स्टेबिलिटी और नागालैंड की प्रॉस्पेरिटी को कभी भी महत्व नहीं दिया। तभी कांग्रेस के शासनकाल में नागालैंड में हमेशा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही। कांग्रेस के लोगों ने नागालैंड की सरकार को दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से चलाया। इसका कारण ये है कि दिल्ली में पहले फैमिली फर्स्ट वाली सोच थी। दिल्ली से लेकर दिमापुर तक इन लोगों ने परिवारवाद को ही प्राथमिकता दे रखी थी। इसलिए नागालैंड सहित पूरा नॉर्थ ईस्ट आज कांग्रेस को उसके किए कामों को, पापों की सजा दे रहा है। साथियों, बीजेपी एनडीए हमारी सरकार ने पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए दिल्ली की पॉलिटिकल सोच को ही बदल दिया है। कांग्रेस के समय में नॉर्थ ईस्ट को सिर्फ कांग्रेस के नेताओं को जेब भरने के लिए हमेशा नॉर्थ ईस्ट को एटीएम ही माना, एटीएम की तरह यूज किया। आप जानते हैं, जब पैसों की जरूरत होती है लोग एटीएम से पैसे निकालते हैं। ये दिल्ली में बैठे हुए कांग्रेस के नेता नॉर्थ ईस्ट के हक का जो पैसा था ना, वो एटीएम की तरह निकाल करके दिल्ली ले जाते थे। सरकार का पैसा यहां जनता के पास नहीं बल्कि करप्ट पार्टियों की तिजोरी में पहुंचता था। साथियों, आपको याद होगा, कांग्रेस के एक पूर्व प्रधानमंत्री कहते थे कि वो दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं और जनता तक 15 पैसा ही पहुंचता है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट तक तो पहले ये 15 पैसा भी नहीं पहुंचता था। 10 साल पहले कोई सपने में नहीं सोच सकता था कि नॉर्थ ईस्ट में कभी हालात भी बदल सकते हैं। लेकिन बीजेपी ने टेक्नोलॉजी की ताकत से करप्शन पर बड़ा
प्रहार किया है। आज दिल्ली से भेजा पूरा रुपया आपके बैंक अकाउंट में पहुंच रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि का लगभग 400 करोड़ रुपया नागालैंड के हजारों किसानों के बैंक अकाउंट में सीधा आया है। बीच में कोई कट नहीं, कमीशन नहीं, बीच में कोई एटीएम नहीं। कोरोना काल में यहां की हजारों बहनों के बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए सीधे दिल्ली से यहां आपके खाते में जमा हुए। एक पैसा भी कहीं लीक नहीं हुआ। साथियों, आपको याद होगा राशन को लेकर पहले कितनी परेशानी होती थी। जिसके पास राशन कार्ड था उसे पैसा देकर भी पूरा राशन नहीं मिल पाता था। आज केंद्र सरकार नागालैंड के हजारों परिवारों को मुफ्त राशन दे रही है, पूरा राशन दे रही है। भाइयों और बहनों, ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि हम नागालैंड को नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों को कांग्रेस की तरह एटीएम नहीं, बल्कि हमारे लिए तो ये अष्टलक्ष्मी है, अष्टलक्ष्मी है। इस अष्टलक्ष्मी को भारत की ताकत मानते हैं। नॉर्थ ईस्ट का कल्चर, यहां का यंग टैलेंट और यहां के रिसोर्सेज नॉर्थ ईस्ट के ही काम आए, इसके लिए हमने काम शुरू किया है। इसलिए हमारा ये प्रयास है कि दिल की दूरियां भी मिटे और दिल्ली से दूरी भी कम हो। हमने दिल्ली को भी कनेक्ट किया है और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से गांवों शहरों को भी आपस में कनेक्ट किया है। बीते 9 वर्षों में दर्जनों बार मैं खुद आपके बीच आया हूं। केंद्र सरकार के मंत्री भी यहां बार बार आते हैं। यहां के प्रसिद्ध हार्निवल फेस्टिवल की रौनक मैं कभी नहीं भूल सकता। मुझे इस बात की खुशी है कि दिलों की दूरियां मिटाने में नागालैंड बीजेपी की टीम भी बहुत ही अच्छा काम कर रही है। यहां के हमारे बीजेपी प्रेसिडेंट टीमजन इमना की बातें आज पूरा देश सुनता है, मजा लेता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वे नागालैंड और नॉर्थ ईस्ट को शानदार तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं भी सोशल मीडिया में उनको हमेशा देखने का तो कोशिश करता हूं। आजाद भारत के इतिहास में नागालैंड को पहली राज्यसभा एमपी देने का अवसर भी एनडीए को ही मिला है। फांगनोन कोयंक जी आज देश की संसद में नागालैंड की बहनों बेटियों के टैलेंट और कैपेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। इसके अलावा ये महिलाओं को सम्मान देने वाले नागा कल्चर का भी सम्मान है। ये रानी गाइडिनल्यू के प्रति भी हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे गुजरात में रानी गाइडिनल्यू जी का स्वागत करने का सौभाग्य मिला था। जब मैं राजनीतिक जीवन में नहीं था, मैं सामाजिक जीवन में काम करता था। साथियों, आप सभी ने
मेरा मन की बात कार्यक्रम जरूर सुना होगा। मैं मन की बात में भी नागालैंड की अक्सर चर्चा करता रहता हूं। नागा कल्चर, क्राफ्ट, नागा लाइफस्टाइल और यहां का म्यूजिक को प्रमोट करने वाली लीडी क्रोयू संस्था के बारे में मैंने मन की बात में भी विस्तार से बात की थी। नागालैंड की किंग हमारी चिली, किंग चिली आज देश विदेश में धूम मचा रही है। नागालैंड के किसानों के इस सामर्थ्य को भी मैंने देश के साथ शेयर किया है। नागालैंड में आज जो भी अच्छा काम हो रहा है वो देश तक पहुंच रहा है और उस पर पूरा देश गर्व करता है। साथियों, अपने ही लोगों पर अविश्वास करके देश नहीं चलता। देश चलता है अपने लोगों का सम्मान करके, उनकी समस्याओं का समाधान करके। इसलिए पहले जहां नॉर्थ ईस्ट में डिवाइड की पॉलिटिक्स चलती थी, हमने उसे डिवाइन गवर्नेंस मॉडल में बदला है। आज पीएम डिवाइन के रूप में विशेष योजना नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए हम चला रहे हैं। इस योजना के तहत ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि नॉर्थ ईस्ट के विकास से जुड़े प्रोजेक्ट समय पर पूरे हो। भाइयों और बहनों, नागालैंड के लिए हमारा मंत्र रहा है पीस, प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी। इसलिए नागालैंड का भरोसा बीजेपी पर, एनडीए पर लगातार बढ़ रहा है। बीते वर्षों में अनेक युवाओं ने हिंसा का रास्ता छोड़ा है और मुझे खुशी है, जैसे मैं नागालैंड आता हूं वैसे मैं एक बार सभी हमारे गांव बूढ़े जो नेता हैं उन सबको मेरे घर दिल्ली बुलाया था, उनका स्वागत सम्मान किया था और उन्होंने मुझे इतने आशीर्वाद दिए थे। आज भी गांव बूढ़े हर कोई मुझे उतना ही आशीर्वाद देता रहता है। पिछले 9 वर्षों में नागालैंड में हिंसा की घटनाओं में लगभग 75% कमी आई है, 75% रिड्यूस हुआ है। नागालैंड में अनेक क्षेत्रों से आस्पा को हटाया जा चुका है। पूरे नागालैंड में आस्पा की जरूरत न पड़े, इसके लिए हम दिन रात ईमानदारी से जुटे हैं। नागालैंड में परमानेंट पीस और प्रोग्रेस की ही भाजपा की पॉलिटिक्स का आधार है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में बीजेपी और एनडीए सरकारें होने से बॉर्डर से जैसे डिस्प्यूट भी तेजी से हल हो रहे हैं। इससे भी इस पूरे क्षेत्र में प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी के लिए नए अवसर बन रहे हैं। 2 मार्च को फिर सरकार बनने के बाद यहां एक्सटॉर्शन करने वालों पर भी और सख्त कार्रवाई की जाएगी। भाइयों और बहनों, बीजेपी और एनडीए सरकार नागालैंड के नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए कमिटेड है। पिछले 9 वर्षों में नागालैंड सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट में रोड हो, रेल हो, हवाई कनेक्टिविटी हो, इसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है। कांग्रेस सरकार के दौरान फाइनेंस कमीशन के तहत नागालैंड के लिए ग्रांट 2000 करोड़ के आसपास थी, जबकि हमारी सरकार ने इसे 2 गुना से ज्यादा बढ़ाया है। अब ये बजट 5000 करोड़ रुपए के करीब है। साल 2014 की तुलना में नागालैंड में नेशनल हाईवे नेटवर्क
लगभग 2 गुना हो चुका है। नागालैंड अब म्यांमार से भी कनेक्ट हो रहा है। नागालैंड में दीमापुर एयरपोर्ट से नॉर्थ ईस्ट के 8 रूट्स पर उड़ान योजना के तहत फ्लाइट शुरू की गई है। 100 साल बाद नागालैंड को अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है। राजधानी कोहिमा को रेलवे से जोड़ने के लिए भी तेज गति से काम चल रहा है। जब कोहिमा तक ट्रेन पहुंच जाएगी तो ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दोनों बेहतर होगा। साथियों, भाजपा सरकार नागालैंड के युवाओं को टूरिज्म से टेक्नोलॉजी तक और स्पोर्ट्स से लेकर स्टार्टअप तक कदम कदम पर साथ दे रही है। कोहिमा में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क अपने आप में एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। आज जब भारत दुनिया की एक बड़ी स्पोर्ट्स पावर बनने की तरफ बढ़ रहा है तो इसमें हमारे नागालैंड के युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। हम भारत की ओलंपिक फुटबॉल टीम के पहले कैप्टन ताली मेरन आओ को बहुत गर्व के साथ याद करते हैं। स्पोर्ट्स की इतनी रिच लिगेसी नागालैंड के पास है। नागालैंड का ये स्पोर्ट्स पोटेंशियल देश के काम आए, इसके लिए एनडीए सरकार काम कर रही है। इसी लक्ष्य के साथ नागालैंड में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी बनाया गया है। इससे रेसलिंग, आर्चरी और बॉक्सिंग जैसे खेलों में नागालैंड के युवाओं को बेस्ट फैसिलिटीज मिल रही है। साथियों, एनडीए सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर चल रही है। इसलिए हम गरीबों के, आदिवासियों के, महिलाओं के विकास पर बहुत अधिक फोकस कर रहे हैं। मैं समाज का वो हिस्सा है जो विकास के लाभ से वंचित रहा है, इसलिए आज हमारी हर स्कीम में इस वर्ग को प्राथमिकता दी जा रही है। गरीब को घर हो, टॉयलेट हो, बिजली हो, गैस कनेक्शन हो, ये सब भी बीजेपी सरकार गरीब के पास जाकर खुद दे रही है। आप कल्पना कीजिए, गरीबों के 55,000 से अधिक घर नागालैंड के लिए स्वीकृत हुए हैं। पाइप से घर घर पानी मिले, ये तो नागालैंड के एक बहुत बड़े हिस्से की बहनों को सपना होता था। पिछले 3.5 वर्षों में ही नागालैंड के 3.5 लाख से अधिक परिवारों तक पाइप से पानी ये पहुंचाने की सुविधा दी गई है। इसका सबसे अधिक लाभ हमारी ट्राइबल बहनों को हुआ है। आयुष्मान भारत योजना का लाभ भी बहुत बड़ी संख्या में हमारी बहनों को हुआ है, आदिवासी परिवारों को हुआ है। नागालैंड के हजारों साथियों ने इस स्कीम के तहत मुफ्त इलाज कराया है। भाजपा सरकार ना रीजन को लेकर भेदभाव करती है। भाजपा सरकार ना रीजन को लेकर के भेदभाव करती है और ना ही रिलीजन को देख करके भेदभाव करती है। आप याद करिए, जब कोरोना महामारी फैली, जब वैक्सीन आई तो हमने सबको वैक्सीन पर जोर दिया।
सबको बिना भेदभाव वैक्सीन लगाई। साथियों, बीजेपी एनडीए सरकार की हर योजना, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की हो या फिर वेलफेयर की, ये सबके लिए है, सबके हित में है, कोई भेदभाव नहीं। यही सबका विकास है। सबका विकास का एक और उदाहरण हमारी किसानों से जुड़ी योजना है। हमारी सरकार छोटे किसानों, आदिवासी किसानों को मदद दे रही है। दीमापुर सहित इस पूरे क्षेत्र में जैसे जैसे कनेक्टिविटी बढ़ रही है, वैसे वैसे छोटे किसानों के लिए संभावनाएं भी बढ़ रही है। नेचुरल फार्मिंग और मिलेट श्री अन्न को प्रमोट करने के लिए बहुत बड़े कदम इस वर्ष के बजट में उठाए गए हैं। इससे नागालैंड के छोटे किसानों, ट्राइबल किसानों को बहुत लाभ होने वाला है। इससे नागालैंड की ऑर्गेनिक खेती को बल मिलने वाला है। बांस की खेती को लेकर भी जो पुराना कानून था, उसको भी बीजेपी सरकार ने बदला है। इसका लाभ आज नागालैंड के आदिवासी परिवारों को हो रहा है। इसी सेवा भावना की वजह से देश की ट्राइबल बेल्ट में बीजेपी को बहुत प्यार मिल रहा है। वही प्यार, वही उत्साह मैं नागालैंड में भी देख रहा हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि वोटिंग के दिन हर बूथ में भी यही उत्साह दिखेगा। अभी त्रिपुरा में चुनाव हुआ पिछले हफ्ते, 80-90% तक वोटिंग हुआ और कई दशकों के बाद त्रिपुरा में भाजपा सरकार बनने के बाद पूरे चुनाव में मतदान हो गया। कहीं पर भी हिंसा की कोई घटना नहीं घटी, किसी की हत्या नहीं हुई। बहुत दशकों के बाद पहली बार हुआ है, क्योंकि वहां भाजपा की सरकार है। शांतिपूर्ण पूरे नॉर्थ ईस्ट में चुनाव जब भी मौका आता है, आज वो वातावरण बना है। बीजेपी एनडीपीपी के हर उम्मीदवार को आप भारी मतों से जिताएं और मुझे भी नागालैंड की सेवा करने की अधिक ताकत दें। इसलिए मैं आज आपके पास आया हूं, ताकि मैं गांव बूढ़ों को जो वादा किया है, मैं हर दिन उस वादे को पूरा करना चाहता हूं। नागालैंड की जनता को मैंने जो वादे किए हैं, वो हर वादे में पूरा करना चाहता हूं। नागालैंड के युवाओं को, नागालैंड की महिलाओं को, नागालैंड के किसानों को मैंने जो वादे किए हैं, उन वादों को मुझे धरती पर उतारना है और हमारे इन साथियों की मदद से वो उतरना संभव होने वाला है। इसलिए मुझे आपका वोट चाहिए, इसलिए मुझे आपकी मदद चाहिए। आप इतनी बड़ा तादाद में आकर के आशीर्वाद दिए, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।